Hello students, I think you all are fine. Today we will have a new lesson and a very important one from the diary of Anne Frank. You might have listened the name of Anne Frank earlier. She is one of the very important writers of English literature and the youngest literary person also. She is the lady. Firstly, let's have her introduction. Her name is Anneliese Mary Anne Frank, and she was born on 12 June 1929 and died in 1945. It means she was only 16 years old when she was died. She was a German born Jewish girl. She was born in German, but she belongs to Jewish family she belonged. But it is the time of the Second World War when they have to ship to Amsterdam because the Germany was going to be occupied by the Nazism. Nazism means you may have heard of Hitler in your social science. Then they have to shift for Amsterdam, but they were not able to go there, and she died before shifting. She died in her 16 years. तो आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ना है इसको एंड यू मस्ट नो अबाउट हर लाइफ. लेट्स have let me tell you that she wrote her diary only for 2 or 3 years. She started writing 12 June. She started writing 12 June 1942 and the last entry is of 1st August 1944. Almost 2 years she was continued writing in her diary, but she died before disclosing her diary. It was after her death that her father found her diary and he published in many languages, and this became one of the important document in English literature. You may have some competitive exams. You may have heard in competitive exams the most important documentary of the diary is the diary of Anne Frank, or the diary of a young girl written by Anne Frank. Let us know about the lesson. ये उसके बाद थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है. जर्नल, डायरी, लॉग, मेमोयर, ये सब क्या होते हैं, जस्ट गो थ्रू देम. आपकी नॉलेज के लिए हैं ये सारी चीज़ें. और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेसन को. तो इसमें क्या है, वो अपना अकाउंट लिखती है. वो कहती इट इज़ इट्स अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. कहती इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा, इसीलिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई शी थिंक्स दैट इट इज़ व्हाई इट इज़ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर राइटिंग अ डायरी फॉर हर. इसीलिए स्ट्रेंज नहीं है कि भाई उसने पहले नहीं लिखा, इसलिए स्ट्रेंज है दैट नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल. इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए, कि उसको लग रहा है कि मेरी इस बातों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. I feel like well, but it doesn't matter. I feel like writing even greater need to get all kinds of things off my chest का मतलब होता है मुझे अपने मन से बाहर निकालनी है चीज़ें. मेरे दिल में जो भरा पड़ा है, मुझे मेरे मन में जो है मैं वो कहना चाहती हूँ, इसीलिए वो चाहती है कि मैं डायरी लिखूँ. तो इसमें क्या है, वाइट शी फील्स टू लाइक द डायरी. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है उसका मन क्यों कर रहा है डायरी लिखने के लिए, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स शी वॉन्ट टू गेट देम आउट ऑफ हर चेस्ट. वो बहुत कुछ बताना चाहती है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा कि उसने उसको डायरी क्यों लिखी है, उसने वो क्यों लिखना चाहती है, क्यों उसको ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन बन रही है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ये लाइन आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में आ सकती है. वाई शी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ऐसा क्यों कहा है उसने, वाई शी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, क्योंकि उसको लग रहा है कि लोग उसकी बातों को नहीं सुनेंगे लेकिन पेपर उसकी बातों को सुनता रहेगा. I thought of this saying no one of these days while I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Finally stayed where I was brooding. Paper does have more patience since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook
grandly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Actually यहाँ पे वो कहना चाहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, बिकॉज वो कहती है मेरी सारी बातों को पेपर सुन सकता है लेकिन और कोई लोग मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। पेपर मेरी सारी बातों को सहन कर सकता है, इसलिए पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों से। देन उसके बाद नो आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कीप मार्क द लाइन, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ये क्वेश्चन आएगा आपको टेक्स्ट में भी, ये वाला क्वेश्चन है कि उसने डायरी क्यों लिखनी शुरू कर दी। एक तो शी वॉन्ट टू, जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें हैं दैट शी वॉन्ट टू गेट ऑफ हर चेस्ट, वो अपने मन से बहुत सारी चीज़ों को निकालना चाहती है। दूसरा, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू राइट अ डायरी। ओके, उसके बाद ये आपने समझ लिया कि वो डायरी क्यों लिखना चाहती है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि उसका दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब वो अच्छे से समझाएगी। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो कहती कहने को तो कोई मानेगा नहीं मेरी बात को, सब लोग सोचेंगे मैं 13 साल की होगी और मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब लोग यही सोचेंगे कि मेरे दोस्त क्यों नहीं है। फिर वो बताती है मेरे पास कौन कौन है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर है मेरी, मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन टेल फ्रेंड्स। 30 के आसपास लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। नो वन ऑन द सर्फेस सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन सब लोग हैं लेकिन मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। सब 30 पीपल मेरे आसपास हैं लेकिन मेरा कोई पक्का दोस्त नहीं है। एंड आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। I can't bring myself to talk about anything but on everyday thing. We don't seem to be able to get any closer. That is the problem. कहती मैं ज़्यादा सब लोगों के मैं ज़्यादा पास नहीं जा सकती, इसलिए that is the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है? confide का मतलब होता है विश्वास करना। शायद हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसलिए शायद हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कोई पक्का दोस्त भी नहीं है। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। लायबल टू चेंज मतलब और ये सब बदलने वाला नहीं है। दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड राइटिंग द डायरी। ये 3-4 चीज़ें आप याद कर ले। वो कहती है एक तो मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अपने आई वॉन्ट टू कीप द थिंग्स आउट ऑफ माई चेस्ट, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और हम एक दूसरे के ऊपर कन्फाइड नहीं करते मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं, और ये थिंग्स आर नॉट लायबल टू चेंज, ये सब कुछ बदलने वाला भी नहीं है, इसलिए दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दिया। ओके, आपको समझ में आ गया कि उसने डायरी लिखनी क्यों शुरू की है। टू हैंड्स द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, but I want the diary to be my friend and I am going to call this my friend Kitty. जॉट डाउन फ्रेंड्स का मीनिंग भी लिखा हुआ है आपकी बुक में। जॉट डाउन का मतलब मैं इसमें ऐसा नहीं, इनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मैं इसको ऐसा बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करने वाली। जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं फैक्ट्स नहीं लिखने वाली इसमें कि ये हुआ था, नहीं, मैं इसको अपने फ्रेंड की तरह मानती हूँ और मैंने इसका अपना दोस्त का नाम भी रख लिया और इसका नाम है किटी। आप देखो क्वेश्चन भी है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है वो आपने शुरू में पढ़ लिया। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये नहीं कि उसके पास उसके मतलब स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए कि उसने पहले नहीं लिखा। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई मेरी 13-year-old गर्ल की बातों में कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई मज़ा नहीं आएगा लोगों को पढ़ने लिए, इसलिए उसको स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है। तो वॉन्ट टू कीप अ डायरी, डायरी क्यों रखना चाहती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, या मैंने आपको समझा दिया। व्हाट डिड एन फ्रैंक थिंक दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल। उसको क्यों लग रहा है कि डायरी में मैं ज़्यादा विश्वास कर सकती हूँ। एक तो पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। लोग मतलब जो भी मैं लिखूँगी वो पेपर मेरे लिए होगा, मेरा पक्का दोस्त होगा, मैं उसके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ और मैं बाकी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। ये आपके ऊपर 3 क्वेश्चंस बनेंगे। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लज राइट इन, आई वुड रादर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो।
वो कहती है अगर मैं सीधा ही लिखना शुरू कर दूंगी ना डायरी में तो किसी को मेरी डायरी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं सीधा प्लंज राइट इन मतलब सीधा जंप नहीं करूंगी इसके अंदर डायरी के, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच देना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि सब लोगों को मेरी डायरी समझ में आ जाए। तो अब वो क्या बताती है अपनी फैमिली के बारे में, अब आप इसके बारे में देख सकते हैं। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, अपने फादर के बारे में वो क्या सोचती है, आप एक वर्ड याद कर ले, उसको क्या लगता है, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही प्यारे पापा हैं मेरे, बहुत प्यार करने वाले, आई हैव एवर सीन, बहुत एडोरेबल पर्सन है, बहुत ही प्यारे पापा हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, कब उसकी शादी हुई 36 में, एंड शी वॉज 25, इतना एज गैप है दोनों में, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का गैप है। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, क्योंकि वो जर्मनी में पैदा हुई है, फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, उसकी बहन के बर्थ हुआ 26 में और उसका बर्थ हुआ 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं 4 साल तक वहाँ पे रही उस फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और जब ये 4 साल की थी तो इसके पापा 33 में चले गए हॉलैंड। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर सॉरी। तो हम जब मम्मी पापा चले गए तो हम किसके पास रह गए, हमारी ग्रैंडमदर के पास। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन डिसम्बर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। तो मैं भी अपनी, पहले मेरी सिस्टर वहाँ पे गई, तो मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड, पहले हॉलैंड में मेरी सिस्टर गई, उसके बाद मैं चली गई, मतलब पहले पापा गए, फिर मम्मी गई, देन सिस्टर गई, देन मैं गई। और जब हम दोनों नहीं गए, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं थे, तो हम किसके पास थे, अपनी दादी के पास। ओके तो मैं भी पहुंच गई वहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखा उसके पापा के साथ उसका काफ़ी अच्छा रिश्ता है, उसको वो एडोरेबल फादर कहती है। जब 4 साल उसके पापा चले गए तो 4 साल वो अपने 1933 में उसके पापा चले गए, तो इन द मीन वाइल ये दोनों बहनें अपनी दादी के पास रहीं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, ये स्कूल का नाम है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 साल तक वहाँ पे रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्लास भी आप समझ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है फर्स्ट क्लास भी कह सकते हैं आप इसको। इन द 6th फॉर्म, 6th क्लास तक माई टीचर वॉज मिसिज क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. तो उस हेड मिस्ट्रेस के साथ इसका बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो गया, और वो दोनों रो रहे थे जब वो 6th फॉर्म के बाद फेयरवेल लेने वाली थी, वहाँ से जाने वाली थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसके लोगों के साथ कैसे रिश्ते थे। पहले आपने इसके पापा के बारे में पढ़ा जिसको एडोरेबल फादर कहती है। अब दूसरा आपने बहुत ही प्यारा रिश्ता इसका मिसिस क्यूपरस के साथ आपने देखा, जो इसकी हेड मिस्ट्रेस है, तो ये इसको बहुत पसंद करती थी उसको। एंड देन व्हेन दे वर बिडिंग फेयरवेल टू ईच अदर देन दे बोथ वर इन टीयर्स, दोनों ही रो रहे थे। 6th क्लास में आके जब दोनों पार्ट होने लगे देन बोथ वर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पे लोगों के साथ उसका बहुत अच्छी अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 में क्या हुआ, ग्रैंडमा फेल इल, इसकी दादी बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। तो इसलिए जून में क्योंकि इसका बर्थडे आता है तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ क्योंकि इसकी दादी बीमार थी। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 में इसकी दादी की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और इसकी दादी के साथ रिश्ता क्या है इसके बारे में आपको क्वेश्चन, आपको कैसे पता चला कि वो अपनी दादी को अभी भी मिस करती है, बहुत प्यार करती है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िए कि ग्रैंडमा डाइड इन 1942, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, मैं उसको कितना प्यार करती हूँ अभी भी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि 1941 में नहीं हो पाया क्योंकि दादी बीमार थी। 1942 में जब बर्थडे सेलिब्रेट आई इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट।
तो 1942 का बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया क्योंकि पिछले वाला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था। और दूसरी बात, एक कैंडल दादी माँ के नाम की भी जगाई गई दादी माँ की याद में। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि उसको अपनी दादी के साथ बहुत प्यार था। ये आपको कैसे पता चला? वो कहती है कि मैं अभी भी अपनी दादी को मिस करती हूँ, मेरा बर्थडे पहले सेलिब्रेट नहीं हुआ था, अभी सेलिब्रेट हुआ तो एक कैंडल दादी के नाम की भी जलाएगी। और जब उसके पेरेंट्स चले गए थे हॉलैंड में तो ये दोनों अपनी दादी के पास रही थी, तभी दादी के साथ इसकी काफ़ी अटैचमेंट रही है। तो ये क्वेश्चन था दादी के साथ। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my डायरी। तो अभी 4 ऑफ मतलब मम्मी पापा और मैं और मेरी बहन अच्छा खासा चल रहा है, और 20 जून की डेट डाल के इसने लिखी हुई है डायरी का ये वाला पेज। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज एन फ्रेंड प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? अपनी लाइफ के बारे में क्यों लिखती है? क्योंकि वो कहती है अगर मैं सीधा लिखना शुरू कर दूंगी तो किसी को मेरी डायरी के बारे में समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ स्केच देना चाहती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? what tells you that Anne loved her grandmother? सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया, आपको कहाँ से पता चला कि वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। अब उसने कुछ डायरी के पेजेस वहाँ पे लिखे हुए हैं। अवर डियर स्किटी आर एंटायर क्लास इज क्वाइकिंग इन इट्स बूट्स। अब उसके स्कूल का एक इंसिडेंट है, काफ़ी फ़नी और काफ़ी मज़ेदार इंसिडेंट है। क्वाइकिंग इन द बूट्स मतलब शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, मीनिंग भी लिखा हुआ है। मतलब जब हम पैर पटक रहे होते हैं किसमें, जब हम थोड़े एक्साइटेड होते हैं, फियर होता है, डर जब रिजल्ट होने वाला होता है, एक्चुअली हमारे पैरों में जब कंपन होती है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। पूरी क्लास क्या कर रही थी? क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। देखो यहाँ पे भी क्लास के लिए नेक्स्ट फॉर्म वर्ड यूज किया हुआ है। आज रिजल्ट का दिन था, कौन आगे जाएगा, मूव अप टू द नेक्स्ट एंड हु विल बी केप्ट बैक, किसको पीछे रखा जाए, कौन फेल हो जाएगा। ऑफ कोर्स हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। सब लोग बेट्स लगा रहे थे, सब लोग कह रहे थे क्या हो जाए, कौन। आई लाफ और सेल्फ सिलियर द टू बॉयज बिहाइंड अस। हम दो लड़कों के बारे में, सीएन एंड जैक्विस, क्या कर रहे थे? स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। वो पैसों की शर्त लगा रहे थे जो उन्होंने हॉलीडेज में सेव की थी। यू आर गोइंग टू पास एंड नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो हम सब लोग गैस लगा रहे थे। इस पैराग्राफ में सब लोग गैस लगा रहे हैं कौन पास होगा कौन फेल होगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। मैंने जोर से उसकी तरफ देखा कि भाई चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। लेकिन हमारी क्लास में बहुत सारे डमीज बच्चे हैं, तो 1/4 क्वार्टर मतलब 1/4 क्लास हमारी पीछे रह जाएगी। बट मार्क द लाइन, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। जब मैंने ये लाइन पहली बार पढ़ी थी तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी। आप शायद आपको भी हंसी आएगी इस लाइन के। कहती टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। धरती के ऊपर जो टीचर्स होते हैं वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो कहती देखा जाए तो 1/4 क्लास हमारी पीछे रह जानी चाहिए, लेकिन टीचर्स का क्या पता ही नहीं चलता, किसको फेल कर देते हैं किसको पास कर देते हैं। तो टीचर्स के लिए उसका वो ऐसा क्यों सोच रही है? क्योंकि पता नहीं किसको पास कर देंगे किसको फेल कर देंगे, इसलिए टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। तो रिजल्ट के दिन की वो बात बता रही है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। उसको लग रहा था कि हम सब लोग पास हो जाएंगे। मैं अपने बारे में, अपनी गर्ल फ्रेंड्स के बारे में चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट मतलब हम पास हो जाएंगे। ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सिर्फ मुझे किसकी चिंता थी? मैथ्स की। एनी वे वी ऑल कैन डू इज वेट। अब हम क्या कर सकते थे? सिर्फ वेट। Until then we keep telling each other not to lose heart। हम सब लोग कह रहे थे कोई बात नहीं, not to lose heart मतलब हौसला रखो, सब लोग पास हो जाएंगे। एक दूसरे को हम लोग तसल्ली दे रहे थे। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Foji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. तो अब एक और पर्सन का नाम आया है यहाँ पे।
कौन है मिस्टर कीसिंग। वो कहती मेरे पास सब बहुत सारे टीचर्स थे, 9 टीचर्स थे, सबके साथ मेरी अच्छी बनती थी। 7 वीमेन थी, 2 मेन थे एंड 2 टीचर्स, और एक टीचर था जिसका नाम था मिस्टर कीसिंग। बहुत आगे पूरे चैप्टर में इसका नाम आना है, तो आप ध्यान से इसको ध्यान पढ़ लें। द ओल्ड फौजी हु टीचर्स मैथ्स वॉज इन्वाइट विद मी फॉर एजेस। फॉर एजेस मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो मेरे साथ गुस्सा रहता है, सदियों से मेरे साथ गुस्सा है। क्यों? क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ हमेशा ही गुस्सा रहता है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उसने मुझे बहुत सारे वार्निंग्स दी। ही साइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब समझते हैं? चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहा जाता है? चैटर बॉक्स का। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम चैटर बॉक्स कहते हैं। तो चैटर बॉक्स उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया कि तुम एक ऐसे लिख के लेके आओगी। क्या नाम होगा उसका ऐसे का? चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, हु कैन यू राइट अबाउट दैट? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉपी में हेडिंग लिखा चैटर बॉक्स और कॉपी को बैग में डाल दिया और चुपचाप बैठ गई कि मैं घर में जाके सोचूंगी इसके बारे में। तो जब मैं घर पहुंची, दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिशिंग द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। मैंने इस पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मेरे ध्यान में आया कि आज मुझे एक एक्स्ट्रा काम मिला था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। ये अपना चूइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन, आपने एक्सीडेंटल टूरिस्ट में भी जब हम सोचते हैं तो मुंह में क्या करते हैं? पेन डाल देते हैं। मैं भी मुंह में पेन डाल के सोचना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया? एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव एंड बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कुछ भी लिखा जा सकता है। रैम्बल मतलब टॉक और राउट एमलेसली फॉर लॉन्ग। रैम्बल का मतलब होता है सिर पैर की, बिना सिर पैर की मारते रहना। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, कुछ भी लिखते रहो, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। मज़ा किस चीज़ में है? टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, एक ऐसे आर्गूमेंट्स देना अपने टीचर को कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, उसको पता चल जाए कि भी मुझे बोलने की ज़रूरत क्यों होती है। कहने को तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, आई कैन रैम्बल ऑन द थिंग्स, मतलब मैं भी कुछ भी इधर उधर बेसर पैर की मार सकती हूँ, लेकिन बात मज़ा इस बात में है कि मैं अच्छे से आर्गूमेंट्स दूँ और उसको बताऊँ कि मुझे ज़रूरत क्यों है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने कितने पेजेस लिख दिए? 3 पेजेस लिख दिए और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी कि मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने उसमें आर्गूमेंट्स दिए, मैंने अपने विचार दिए कि जो स्टूडेंट का ट्रेड क्या होता है? बोलना। स्टूडेंट्स की मेन करेक्टरिस्टिक, उसकी मेन फीचर क्या है? बोलना। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, मैं अपने आप इसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच। तो ये इस पैराग्राफ को आप मार्क कर लें कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्वालिटी कहाँ से आई है? मेरी मम्मी से आई है। ये तो इनहेरिटेड क्वालिटी है। एज आई डिड नो नॉट मोर दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। जो ट्रेड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? अपनी फैमिली से। उन ट्रेड्स को आप क्या नहीं कर सकते? उन ट्रेड्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो पहली बार जब उसको पैराग्राफ मिला, ये आपको बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चैटर बॉक्स के बारे में बोलने के ऊपर उसको कौन कौन से ऐसे मिले। 3 बार ऐसे मिलेगा उसको। अभी आपने सिर्फ एक ऐसे पढ़ा है, उसका नाम है चैटर बॉक्स। तो उसके बारे में उसने घर में जाके सोचा, तो उसने रैम्बल डाउन नहीं किया, उसने एक अच्छे आर्गूमेंट्स दिए, कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, याद रख लें इस वर्ड को, कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स दिए उसने और बताया द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मुझे ज़रूरत क्यों है बोलने की। क्यों कहा उसने? बिकॉज इट इज़ द ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, ये तो बच्चे का ट्रेट होता है बोलना। और उसने ये कहा मैं इसको कोशिश करूँगी सुधारने की, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बोलती है। इसीलिए जो चीज़ हम इनहेरिटेड होती है, जो ट्रेट हमें अपनी फैमिली से मिलता है, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को आप याद कर ले। पहले ऐसे के बारे में उसने क्या लिखा।
दूसरी बार, मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। गुड लाफ मतलब काफ़ी हंसे, वो मज़ा आया उनको मेरे आर्गूमेंट्स पढ़ के। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैं अगली बार भी बोलती रही, ही साइंड मी अ सेकेंड ऐसे। अब उन्होंने मुझे सेकेंड टाइम ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन द एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजली अ बैड क्वालिटी। एक ऐसी क्वालिटी जिसको आप ठीक नहीं कर सकते उसको कहते हैं इनकोरिजिबल। क्या बोलते हैं उसको? इनकोरिजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता। पहले सिर्फ ऐसे का नाम था अ चैटर बॉक्स, अब दूसरी बार ऐसे का नाम क्या है? एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। तो मुझे दूसरी बार जो ऐसे मिला उसका नाम था एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। दूसरी बार फिर ऐसे लिखने को दे दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने पकड़ लिया और 2 लेसन्स तक मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। Hand Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox। सेकेंड ऐसे के बारे में ज़्यादा उसने नहीं बताया है, एन फ्रैंक ने ज़्यादा नहीं बताया कि मैंने इसके बारे में क्या लिखा। 2 लेसन्स तक तो मैं चुपचाप बैठी थी। नथिंग टू कंप्लेंट, उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं की, करने के शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया। लेकिन तीसरी बार थर्ड लेसन तक क्या हो गया, वो फिर बुरा मान गया मेरे बोलने का और उसने मुझे थर्ड टाइम फिर से ऐसे दे दिया। उसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो आप 3 ऐसे के नाम याद कर लें। पहले ऐसे के बारे में उसने बताया है कि इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी इनहेरिटेड क्वालिटी है। दूसरे ऐसे के बारे में उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम बताया है। तीसरे ऐसे के बारे में आप नाम आपने याद कर लिया। अब हम आगे देखते हैं वो इसके बारे में क्या लिखती है। द क्लास रोड, सब लोग हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसने लगी। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। मैं भी हंसने लगी कि मैं बिल्कुल, लेकिन इंजेन्युइटी का मतलब ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस। मैं आर्गूमेंट्स लिख के इससे पहले क्योंकि बार मैं 2 बार ऐसे लिख चुकी थी और 2 बार लिखने के बाद वो जो मेरी सारी आर्गूमेंट्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। मेरी इन्वेंशन, मेरे दिमाग में आने वाले सारे आइडियाज़ ख़त्म हो चुके थे। अब मैं क्या लिखती अगले के बारे में, अगले ऐसे के बारे में अब मुझे सोचना पड़ना था क्योंकि सारे आर्गूमेंट्स मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी। तो इस बार क्या हुआ, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। तो इस बार कुछ नया करना था मुझे। क्या किया? माई फ्रेंड सेन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। in verse का मतलब होता है इन पोएम फॉर्म, पोएम के स्टाइल में। तो मेरी फ्रेंड ने, जिसका नाम है सेन, उसने, वो गुड एट पोइट्री, वो अच्छी खासी पोइट्री लिख लेती है, तो उसने मुझे हेल्प करने का सोचा। और मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं इस बार ऐसे को वर्स फॉर्म में, वर्स मतलब पोएम की फॉर्म में लिखूंगी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट्स व्हाट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। वो मेरे ऊपर गेम खेल रहे थे, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। व्हाट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मैं क्या कर रही थी, उल्टा उसको जोक का जवाब जोक में ही दे रही थी। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो मैं उनका मजाक उड़ा रही थी। तो इस बार मैंने ऐसे किस फॉर्म में लिखने का सोच लिया, इस बार मैंने सोचा कि मैं ऐसे पोएम फॉर्म में लिखूंगी। क्वैक 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 सैड मिसिस चैटरबॉक्स। तो ये उसके थर्ड ऐसे का जो नाम है ये भी आप याद कर लें। तो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने पोएम ख़त्म कर दी एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। तो मैंने क्या लिखा, एक मदर डक की पोएम, एक फादर स्वैन है, उनके 3 बच्चे हैं, बिटन टू डेथ, उनको बेचारों को मार दिया गया, पापा ने मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, लकीली वो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने जोक को जोक ही रहने दिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, सारी क्लास को सुनाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स बीच में ऐड कर करके सुनाता रहा, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी जा के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद उन्होंने मुझे बातें करने के लिए अलाउ कर दिया। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और
ऊपर उल्टा क्या हो गया, आजकल वो खुद जोक्स बना रहे होते हैं। योर्स एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपकी बुक में शामिल किया गया है। एक बड़ी डायरी में से एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में डाला गया है। तो इसके क्वेश्चंस आप देख लें। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग annoyed विद एनी, annoyed मतलब गुस्सा क्यों थे, क्योंकि वो बातें बहुत करती थी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, क्या करने को कहा उसको, ऐसे लिखने को कहा। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चटर बॉक्स इन हर ऐसे, उसने कैसे अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैं क्यों बोलती हूँ, क्यों, क्योंकि उसने कहा मेरी मम्मी बहुत बोलती है। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगा वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है? नहीं, क्योंकि एंड में वो खुद हंसते हैं, खुद जोक्स बनाते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए, तो इसलिए हमें लगता है कि वो ज़्यादा गुस्से वाले टीचर नहीं हैं। वॉट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एंड टू टॉक इन द क्लास, कौन सी बात से वो आगे बातें करने के लिए उसको अलाउ कर दिया? उसके थर्ड वाले ऐसे में जो बहुत मज़ेदार था, जो हंस हंस के सुनाया उन्होंने, तो ये वाला ऐसे उनका बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी आपने ये लेसन पढ़ा, वॉज एंड राइट व्हेन शी सेड दैट वर्ल्ड वुड बी नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ अ 30-year-old, आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोग उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे? चलो हम थोड़ा टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो वो क्यों लिखना, डायरी क्यों लिखना चाहिए, उसको क्यों लगता है लोग उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। 13-year-old गर्ल की बातों को कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए कोई भी मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसीलिए वो उसको लग रहा है कि मेरी बातों को कोई भी समझेगा नहीं। दूसरा उसने कहा वो क्यों लिखना चाहती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, वो बहुत सारी बातें करना चाहती है। दूसरी बात, उसके घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसमें वो उनका विश्वास नहीं है, किसी को वही बातें बताना नहीं चाहती, कहना नहीं चाहती, वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या करती है, अपनी डायरी लिखना उसने शुरू किया। उसके बाद लोगों के साथ उसका क्या रिश्ता है, अपने पापा को वो मोस्ट अडोरेबल फादर कहती है। मिसिस क्यूप्रस जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उसके साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया गया है। अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया गया है। तो वो अपनी दादी को मिस कर रही थी, उसके नाम की कैंडल भी जलाई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। और फिर बाद में एक बड़ा क्वेश्चन मिस्टर कीसिंग के साथ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से ऐसे दिए, कौन से ऐसे में क्या लिखा उसने, तो ये सब आपको याद कर लेना है। तीनों ऐसे के बारे में कैसे उसने आर्गूमेंट्स दिए, थर्ड ऐसे के बारे में उसने क्या लिखा, डकलिंग वाला क्या एपिसोड बताया। तो ये चीज़ें आप ध्यान से इस लेसन को पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड आई होप कि ये लेसन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू बेबी।